तो इंटीग्रेशन ऑफ सम पर्टिकुलर फंक्शंस, इसमें स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज हैं जिन्हें ड्राइव भी करेंगे हम। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ विद रूट, फिफ्थ एंड सिक्स्थ। दे आर द स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज, लेकिन अगर एग्जाम में एज अ क्वेश्चन आता है देन यू हैव टू सॉल्व इट। लाइक फर्स्ट वन, dx upon x square minus a square. You should multiply and divide by 2a, because this will become dx. Here is a formula, x minus a, x plus a. So you divide with 2a and multiply with 2a. Write down 2a as a plus a and himself add x and subtract x. Reason, this is written as x plus a, taking negative as a common, x minus a. Now your denominator is sharing the denominator. And when you share the denominator, one value will cancel. And integration of the first part is log of x plus a. Similarly, the integration of next is, first is x minus a, next is x plus a. Apply the logarithm property, which says that log of m minus log of n is equal to log of m upon n. So by that rule, this is log of m minus n plus c. Part second, dx upon a square minus x square. Similarly, multiply and divide with 2a, and in denominator the formula is a minus x, a plus x. Write down 2a as a plus a, and again add and subtract x by yourself. The next step, according to denominator, this will become a minus x or a plus x. Now share your denominator. Term will cancel. While doing integration, the integration of first part is log of, and here the integration is log of a minus x, and specially mention the coefficient of x, which is minus, is in the denominator. That is why this is 1 upon 2a log of a plus x minus log of a minus x. Again, the logarithmic difference law, which says log m minus log n is equal to log of m upon n. So therefore, this is log of a plus x, a minus x plus c.
For the third one, since inverse trigonometry से हम इस टेबल को यूज करते रहे, this is according to your 10th class T ratios. tan x for area got है जी, हाँ जी बिल्कुल. Note it down. A square minus x square. In the third part, we use this one. Dx x square plus a square dx. So therefore, we put x is equal to a tan theta. Differentiate both sides. The differentiation of tan is, now substitute the value of a dx and substitute the value of x also. Taking a square as a common in the denominator, this is your 10th class T ratio 1 plus tan square theta. Is secant square theta. Now the integration of a 1 is theta plus c. So better you can find out the value of a theta from here, which is tan inverse of x upon 8. So the value of theta is your answer. Similar pattern में अभी हम करें तो फिर अगला पार्ट है हमारा 5th, which is depends upon the first substitution a square minus x square. For the 5th one, you have to put x is equal to a sine theta. The differentiation of a sine is cos theta. Substitute the value of a dx, which is a cos theta d theta, and the value of a x as a sine theta. तो स्क्वायर ओपन करेंगे तो ये आ जाएगा a square sin square theta. So a cos theta d theta, root में a square common, 1 minus sin square theta is also a cos square theta. बेटर क्लियर होगा, रूट से रिमूव करेंगे तो 1 minus cos के 1 minus sin के थीटा cos के थीटा, दिस विल अगेन बिकम अ cos थीटा d theta. The integration is 1, which is theta plus c, and what is the value of a theta is sine inverse of x upon a plus c. Now for the 4th one, we again use this substitution, a square minus x square minus a square for the 4th one. So by substitution we put x equal to a secant theta. When we differentiated, the differentiation of secant is, so therefore your numerator is a secant theta tan theta d theta. And in denominator, in place of x, we substitute the value square हो जाएगा. When you take
a square as a common, secant square theta minus 1 is tan square theta. So this is a square tan square theta cancel a and tan theta. So now tell me what is the integration of a secant? हाँ जी, secant x plus, we have already done it. So the integration of a secant is log of secant theta plus tan theta plus c. But make it clear आपकी वैल्यू substitution में secant है. So please change the tan by a 10th class t ratio. Tan square theta is, अगर स्केयर हटाएंगे तो रूट आएगा. So therefore log of, and tan is written as secant square theta minus 1 plus c. Now what is the value of a secant theta? Secant theta is x upon a. So therefore log of x upon a under root x upon a whole square minus 1 plus c, which is log of x upon a. रूट में अगर आप इसे सॉल्व करेंगे, एलसीएम एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी, log of a as LCM x plus under root of x square minus a square plus c. ओके जी, यहां से आप फिर से लॉगरिथम का लॉ लगाएंगे which says log m upon n is equal to log of m minus log of n. So therefore this is log of m minus log of a plus c. Please mark your examiner कि c minus log of a. बाय द वे बुक्स के हिसाब से तो इसे शुरू से c1 लिखते हैं हम, आप ऐसे लिख लीजिए, फिर इसे नया कांस्टेंट c नेम दीजिए. देन वी फाइनली मार्क योर आंसर x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस c. ये जितने भी फार्मूले हैं इनके नीचे मेंशन मार्क करके लिखिए दैट कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर शुड बी यूनिटी. आपने सभी फार्मूलों में चेक किया होगा, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट जो है वो यूनिटी ही होना चाहिए, तभी ये फार्मूला आपका एप्लीकेबल है. इससे रिलेटेड एनसीईआरटी में कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर शुड बी यूनिटी. स्टैंडर्ड फार्मूला यूज हो रहा हो, दिस इज एग्जांपल 1. applied yes, this is dx x square minus 4 square. Your formula 1 upon 2a log of x minus 4 x plus 4 plus c. Clear? The another question
स्टेट वे जहां आप फार्मूला यूज करेंगे। योर एक्सरसाइज 7.4 क्वेश्चन नंबर सेकंड, थर्ड, सॉरी फोर्थ। The coefficient of x square should be unity. So therefore you should take 4 as a common. So coefficient of x square should be unity. क्या common आएगा? 4. So रूट से बाहर हाँ जी, yes, आगे 1/2 होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इस फार्मूला से गेस कर रहे थे आप। फिफ्थ वन, साइन इनवर्स ऑफ x अपॉन a प्लस c। 1/2 साइन इनवर्स ऑफ 2x प्लस c। सॉरी दिस इज प्लस, गलत फार्मूला लगा दिया, फार्मूला चेंज, ये प्लस था तो फार्मूला चेंज है जी, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। लॉग ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट राइट। नेक्स्ट में क्या कॉमन आएगा? कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर शुड बी यूनिटी। 5 तो रूट से बाहर आने पे रहेगा, फिलहाल 25 कॉमन होगा वो। 9/25 माइनस एक्स स्क्वायर 3/5 होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। This time fifth one formula, sine inverse of x upon a plus c is sine inverse of the c. The next is completing whole square if it is a quadratic. The first step is that you should make the coefficient of x square unity. So you can take a as a common. Next step, add and subtract half coefficient of a x and his square. Half the coefficient of x, his square, add half the coefficient of x and subtract. This will become a perfect square of and manage it by your calculation. हाँ जी,
So taking A as a common, add and subtract half the coefficient of x. Add and subtract. This will become a perfect square. Now, this c upon a minus b square upon 4a square, let it be another constant. It will be a k square. And then you can apply any of the formula जो अभी हमने किए हैं. The best example, and make it clear, this will also use to find out the integration where this quadratic term is in a square root. तभी यही सेम मेथड रहेगा कंप्लीटिंग होल स्क्वायर. प्रैक्टिस के लिए एनसीईआरटी से एग्जांपल से ही फर्स्ट क्वेश्चन पहले चूज करते हैं. अब इसमें कंप्लीटिंग होल स्क्वायर करने के लिए कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर शुड बी यूनिटी. सो ऑफ कोर्स वो तो ऑलरेडी यूनिटी है. नाउ व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स? उसका हाफ 3 and then his square, add and subtract. अब यहां क्लियर होगा बिकॉज दिस इज अ फॉर्मूला ऑफ x माइनस 3 होल स्क्वायर. कितना है जी? -9 + 13 4 हो गया. तो 2 स्क्वायर. फार्मूला आप चेक करिए. 1/a tan इनवर्स ऑफ x अपॉन a प्लस c. फार्मूला आप चेक आउट कर लीजिए जो 6 फार्मूलाज आपको दिए हैं. 1/a tan इनवर्स ऑफ x अपॉन a. हाँ a, सॉरी. डन. ओके. एग्जाम्पल 9 पार्ट फर्स्ट के बाद आपके पास आता है एग्जाम्पल 9 पार्ट सेकंड. यस. फार्मूलास जल्दी ही लर्न कर लें, जरूरी है. ओके. In the next example, the coefficient of x square should be unity. Now the coefficient of x is 13 and his half and square. This is 13/6 whole square and 13/6 whole square, add and subtract. The first part is quite simple. This is a perfect square of whole square. What about the rest one? कितनी आई है ये वैल्यू? एलसीएम लेके 169 एंड 30. हाँ नहीं 36 हाँ जी 169/36. आगे
कुछ को कैलकुलेशन में अगर प्रॉब्लम हो रही है तो 169/36 माइनस 10/3, 36 इज एलसीएम माइनस 169, कितने का 36 होता है? 12 का 120। हाँ, 12 इंटू 10 120, कितना हो गया? इतना ही है। कैलकुलेशन क्लियर करके दें। यस, and 289 is a perfect square of a 17. So this is minus 17 upon 6 whole square. And this is a formula, the first one. 1 upon 2a log of x minus a x plus a plus c. सो मार्क्स के लिए अभी फाइनली सॉल्यूशन आपका नहीं आया है, जो कि आपके पास बनेगा। अगर आप कॉमन लेके कैंसिलेशन कर दें तो वो ज्यादा बेटर है। कॉमन लेके कैंसिल कर देंगे। ये ठीक है लिए। The coefficient of x square should be unity. So therefore you can take 5 common, जो √5 आ जाएगा by the way, 5 रूट से रिमूव होके। So the coefficient of x is half and then square, कितना हुआ जी? This will become a perfect square. This is a perfect square of x minus 1 upon 5 whole square। अच्छा, a square प्लस b square, ये जो आप देख रहे हैं ये 2ab ही है, दिखाई दिया फार्मूला। फोर्थ वन, 1 upon √5 log of x, x is plus under root x square a square plus c। अगर आप इसे कैलकुलेट करें तो ये यही वैल्यू है वापस। फिर भी अगर आप इसे रिकैलकुलेट करना चाहते हैं तो ये आप कर सकते हैं जी। अगर आप इसे कैलकुलेट करें तो ये वैल्यू एक्स स्क्र माइनस 2x/5 ही है।
एक्सरसाइज 7.4 में स्टेट में रिलेटिव क्वेश्चंस जो इसके साथ हैं, ये स्टार्ट। आंसर लगा दिए, मैच कर सकते हो। नहीं आए तो स्क्रीन पे। कंप्लीटिंग होल स्क्वायर करने के लिए ऐड एंड सब्ट्रैक्ट क्या किया आपने? This is a perfect square of and one square. X square. Sorry, root is also there. Root x square plus a square. The sixth one formula. Log of x plus under root आप सॉल्व करिए। ये फाइनली रूट में आने वाली वैल्यू प्रीवियस कैलकुलेशन ही है। क्लियर? For the 11th one, in this part, the coefficient of x square should be unity. So therefore, you should take 9 as a common. So 6 upon 9 is 2 upon 3 actually. Add and subtract coefficient of x का half. इसका half and his square is because 2 upon 3 जो है उसका half होगा 1 upon 3 और उसका square. So the first three terms will be a perfect square of and minus 5 upon 9 is also there. Okay. हाँ जी, कितना हुआ? 4 upon 9. Yes, it is 2 upon 3 whole square, which is a formula from the third one. 1 upon a tan inverse of x upon a plus c. 12th one, coefficient of x square should be unity. Please mark it as important also. So unity, so therefore you can take negative as a common. But make sure आप negative root से बाहर ना लिखे जाएं, because square root of -1 is iota, that is your imaginary value. तो आपका solution गलत हो जाएगा. Next, for completing whole square, add and subtract. The coefficient of x is 6, his half is 3, and his perfect square is 9. So you can add 9, you can subtract 9 and minus 7. This is a perfect square of x plus 3 whole square. Minus 16 will become minus 4 whole square. Before applying the integral formula, you can reintroduce the negative sign. Negative sign को वापस reintroduce कर दीजिए. 4 square x plus 3 whole square. The fifth one formula, sine inverse of x upon a plus c. नेक्स्ट 3 को भी कोशिश करिए. इसमें सिमिलर जो है वो 12 and 14 आइडेंटिकल है.
Answers. Answer of the 13. Answer for the question 14 and answer for the question number 15. Check करिए. Q. After multiplication करने के बाद, हाँ जी, कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके पास अपीयर रही होगी. एक्स स्क्वायर माइनस 2x, हाँ, एक्स स्क्वायर माइनस 3x. इसमें तो इतनी मेहनत ही क्यों करनी है बच्चे, आप इसे स्ट्रेट फॉरवर्ड भी कर सकते हैं. देखिए एक्स स्क्वायर नहीं, कोएफिशिएंट ऑफ x 3 and his half 3/2, square is 9/4. Add and subtract. X minus 3/2 whole square. Next is, आगे आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये -1/2 whole square आएगा. This is a formula for under root of x square minus a square, जो कि आपका फोर्थ फार्मूला है, is equal to log of x plus under root x square minus a square plus c. ये एक्चुअली जितनी भी कैलकुलेशन है इसी की है, आप इस वैल्यू को डायरेक्टली लिख सकते हैं जी, या आप खुद से दोबारा कैलकुलेट करें तब भी यही आएगा. 14th, जिसे प्रीवियस क्वेश्चन के साथ मैंने सिमिलरली इंपॉर्टेंट का टैग दिया था, और इसमें स्पेशल क्या है कि कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर शुड बी यूनिटी, so therefore you can take negative as a common but keep the negative inside the square root. Coefficient of x3, his half is 3/2, so square जो add and subtract करना है वो plus 9/4 minus 9/4 minus 8. अब इसके बारे में आप मुझे बता सकते हैं कि फाइनली आपके पास ये तो परफेक्टली क्लियर है कि x माइनस 3/2 होल स्क्वायर आया. इसमें √41 बढ़िया नीवन वैल्यू, प्लस की माइनस आ रहा है, माइनस √41/2 होल स्क्वायर. ओके, री इंट्रोड्यूस द नेगेटिव साइन वापस. सो √41/2 होल स्क्वायर माइनस the fifth formula is the sine inverse of x upon a plus c. आपके पास आंसर है. 15 के लिए नेक्स्ट स्क्रीन पे जाएंगे. क्वेश्चन नंबर 15, कंप्लीटिंग होल स्क्वायर. बिफोर दैट आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कुछ ऐसे आएगा. अब एड एंड सब्ट्रैक्ट हाफ द कोएफिशिएंट ऑफ x की बात. सो कोएफिशिएंट ऑफ x जो है वो a प्लस b है, एंड हिज हाफ, उसका स्क्वायर ऐड एंड स्क्वायर सब्ट्रैक्ट, लास्ट में है ए बी. दिस इज अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ कौन 2 क्यों होगा, वो 2ab में 2 कैंसिल हो जाएगा.
हाँ जी, नहीं, इस कैलकुलेशन के बारे में आपका क्या कहना है? ए बी माइनस 4 4 AB minus 2AB. This will become plus 2AB, negative common, so this is A minus B upon 2 whole square. आपके पास सामने कैलकुलेशन है, कुछ पूछना चाहते हो तो? साइन सही से नहीं चेंज हो रहे, साइन ठीक से चेंज करिए। फार्मूला स्क्रीन पे मैंने रखे नहीं हुए, वैसे पर्टिकुलरली यहाँ के लिए ये फार्मूला एप्लीकेबल होता है। सो log ऑफ x प्लस अंडर रूट, हाँ जी, अदरवाइज नेगेटिव की गलती रहेगी हमेशा ही। हो सकता है आप ब्रैकेट सही से ना खोल पाएं और कैलकुलेशन में कहीं एरर हो जाए। इसके लिए बेटर है कि आप पहले से ही उसे सेपरेट और नीट एंड क्लीन रहे, इसलिए आफ्टर कैलकुलेशन जो मैंने आपको बताया कि ये वैल्यू फाइनली अपनी इसी कैलकुलेशन को रिप्रेजेंट करती है। नेक्स्ट टाइप, फर्स्ट तो स्ट्रेट फॉरवर्ड फार्मूले थे, देन आपके पास कंप्लीटिंग होल स्क्वायर था। अब आपके पास नेक्स्ट टाइप है लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक। पहले हमने सिंपल किए थे, अब आएंगे लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक। बेसिकली न्यूमरेटर में डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर बनानी होती है। बुकिश लैंग्वेज भी लिख देता हूं, लेकिन इसका सही तरीका यही है कि न्यूमरेटर इज इक्वल टू लैम्डा डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर प्लस म्यू। फिर वो डिनोमिनेटर आपका विथ रूट है या विदाउट रूट है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बुकिश लैंग्वेज में लिखा जाए तो पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू लैम्डा डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर। माइंड में क्लियर रखना, रूट साथ में इंक्लूड नहीं करना होता जब डिनोमिनेटर बोल रहे हैं, तो इसीलिए कई जगह पर इसे क्वाड्रेटिक वर्ड भी बोलते हैं। और आपको लैम्डा और म्यू की वैल्यू फाइंड आउट करनी जरूरी है, and you know the method, that is by equating the coefficients। अगर आप coefficient equate करेंगे तो आपके पास ये रिजल्टेंट आएंगे। इसमें एनसीईआरटी खुद ब खुद को स्टार्ट करती है फ्रॉम एग्जाम्पल 10। यस, so for this one numerator is equal to lambda differentiation of denominator plus mu. This is 4x plus 6 plus mu। वैल्यूज की जहां तक आपने बात पूछी थी, वो मैंने आपको कहा था कोफिशिएंट इक्वेट करके निकालेंगे।
तो पहले आप कोफिशिएंट ऑफ एक्स ले लीजिए 1, दिस इज 4 लैम्डा and then equate constant में इक्वेट होगा 2 6 lambda plus mu. You can substitute the value of a lambda, तब आपके पास mu की वैल्यू आ जाएगी. Coefficient of x is in the left. 4 lambda. x का कोफिशिएंट 4 लैम्डा है, मल्टीप्लाई करके देख लो. कांस्टेंट की बात आएगी तो राउंड ऑफ किया हुआ, यहाँ आएगा 6 लैम्डा प्लस म्यू. सॉल्व करेंगे तो म्यू की वैल्यू इट इज 1/2. Now the value x plus 2 is replaced with here lambda 4x plus 6 or mu half. So now sharing the denominator first with 4x plus 6 and next time with half. You can name them, first one as a I1 and the second as a I2. Whereas I1 as usually आपने सब्स्टिट्यूशन ही कुछ इस तरह से किया था कि डिनोमिनेटर फंक्शन है, न्यूमरेटर डिफरेंशिएशन है. तो कुछ जने तो इसे स्ट्रेट फॉरवर्ड यूज करते हैं, अपने एग्जामिनर को ये लिख देते हैं कि न्यूमरेटर डिफरेंशिएशन है और डिनोमिनेटर फंक्शन है, बट ये आपको लिखना है उसके आगे. तो दैट इज व्हाई यू आर डायरेक्टली अप्लाइंग दिस लॉ. लेकिन अगर आपको कंफ्यूजन होती है तो कोई कंपल्शन नहीं है, आप पुट करिए और उसे बताइए कि मेरे पास डिनोमिनेटर की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करने के बाद न्यूमरेटर एज अ डिफरेंशिएशन आता ही है, तो आप ऐसे भी बता सकते हैं. और फिर आप I1 को डी वाई अपॉन वाई प्लस C1 या लॉग ऑफ वाई प्लस C1 या लॉग ऑफ 2x² प्लस 6x प्लस 5 प्लस C1 और स्ट्रेट फॉरवर्ड ऐसे लिख दीजिए. दोनों आपकी अपनी चॉइस है. जहां तक सेकंड I2 की बात है, दैट इज अगेन यू आर कंप्लीटिंग होल स्क्वायर. थोड़ा शॉर्ट में चलेंगे, 2 कॉमन 1/4 बाद में लगाएंगे ना, जब I1 में वैल्यू रखेंगे यहाँ पे फर्स्ट में. तब मैंने साथ नहीं कैरी किया वो कांस्टेंट. अगर आप साथ कैरी कर रहे हैं कांस्टेंट तो फिर साथ रहने, तो वो तो सब्स्टिट्यूशन में सेम ही रहेगा. सो 2 कॉमन x² प्लस 3x प्लस 5/2. कोफिशिएंट ऑफ x ऐड एंड सब्ट्रैक्ट x² 3/x, इसका कोफिशिएंट ऑफ x 3 हाफ और इसका स्क्वायर जो हो जाएगा वो 9/4 ऐड 9/4 subtract. So first 3 terms is a perfect square of 3/2 whole square. 20 minus 9 and it is कितना हो रहा है 9 10 minus, okay, minus 1/2 whole square. Right? This is a formula of x² minus
आई थिंक एक बार चेक करिए, -9 9 10 10 प्लस आएगा, सॉरी। ओके, 1/a tan इनवर्स ऑफ x/a प्लस c2। अब आप सेकंड और थर्ड, फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। फर्स्ट में अपनी वैल्यू को री सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, क्योंकि आपने वैल्यूज ही रखनी है। आपने दो डिफरेंट तरह के आर्बिटरी कांस्टेंट्स लिए हैं, तो एग्जामिनर को ब्रैकेट में मार्क कर देना कि c1 प्लस c2 को फर्दर मैंने यहाँ पर c मार्क कर दिए। ये क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक तो ये लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक है, और दूसरा जो है इसमें नेगेटिव कॉमन लेते टाइम आपने ध्यान भी रखना है। अब जो न्यूमरेटर इज इक्वल टू लैम्डा डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर है, वो नेगेटिव कॉमन ले लिया था या बिना उसके ही कर लिया आपने? चलो उसके बिना कर लिए तो हम भी ये रखते हैं। सो न्यूमरेटर इज इक्वल टू लैम्डा डिफरेंशिएशन ऑफ, मैंने कहा था क्वाड्रेटिक विदाउट रूट, प्लस म्यू। सो देयरफॉर x प्लस 3 इज इक्वल टू -4 -2x प्लस म्यू, यही लिखा होगा। इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ x, दिस इज x, मैं मार्क कर दे रहा हूँ, ये आ गया। तो यहाँ 1 है, एंड राइट हैंड साइड पे -2 लैम्डा, तो लैम्डा आपका चेक करिए -12 है। ओके, इक्वेटिंग द कांस्टेंट 3 माइनस एंड दिस, तो -4 लैम्डा प्लस म्यू, लैम्डा -12 प्लस म्यू, कितना बता रहे हो आप? हाँ, म्यू इज इक्वल टू 1। ओके जी, न्यूमरेटर में वैल्यू रख रहे हैं, आई से डिनोट कर रहे हैं, x प्लस 3 की जगह रिप्लेस कर रहे हैं वैल्यूज को, -12 -4 -2x, whereas mu is 1. Now you share the denominator, I is equal to -12 and plus 1 upon, इस केस में आप फर्स्ट वाले में लॉग ऑफ मत यूज कर देना। कई जने गलती से यहाँ लॉग ऑफ यूज कर लेते हैं, ये डिनोमिनेटर की डिफरेंशिएशन नहीं है। योर डिनोमिनेटर इज अ स्क्वायर रूट, इसलिए इसकी डिफरेंशिएशन नहीं है। यहाँ आपको इसे पुट करना होगा, और इसकी डिफरेंशिएशन dx इक्वल टू dy। आपको इसके बाद पता लग जाएगा कि ये log ऑफ क्यों नहीं अप्लाई हो रहा है, बिकॉज दिस इज dy, दिस इज रूट बाय बेसिकली, और यू कैन से y रेज टू पावर -12 and n plus 1 plus c, this is 2 root y plus c1, or you can say that I1 is 2 root y, हाँ 1/√y की इंटेग्रेशन लर्न करनी हो वो कर सकते हैं आप, 2√y वहां एग्जाम में अगर आप अपना टाइम सेव करना चाहते हैं तो। दिस इज योर सेकंड। थर्ड वन, ये तो आप ऑलरेडी पहले भी कर रहे हैं, कंप्लीटिंग होल स्क्वायर। रूट में आप नेगेटिव कॉमन लेंगे, बट इनसाइड द रूट ही रखेंगे उसे, x² -4x -5। क्या ऐड एंड सब्ट्रैक्ट किया अगर आप यहां तक आ गए लिखते हुए तो? +4 and -4। ओके, so first three term is a perfect square of x plus 2 whole square minus 3 square। एज यूजली नेगेटिव साइन री इंट्रोड्यूस करना है, और आप देखेंगे इसमें आपके पास फार्मूला भी साइन इनवर्स का ही यूज होता है हमेशा।
is equal to sine inverse of x upon a plus c2। इसे आप थर्ड बोलेंगे, पुट द वैल्यू of second and third in equation first। NCERT exercise 7.3 linear upon quadratic से रिलेटेड जो क्वेश्चन है। आंसर 16, आंसर 17, आंसर 18, the answer for 20, the answer for 21, answer for 22, and for 23। पॉज कर दो और आप अपने आंसर निकाल लीजिए। मैं ये रिकॉर्डिंग को यहीं पॉज कर दे रहा हूँ, आप अपने आंसर्स निकाल लीजिए। आ जाने पर फिर आगे हम डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं। 16 तो बहुत ही सिंपल था, वो तो जस्ट टू क्रिएट अ कंफ्यूजन है। अगर आप डिनोमिनेटर को डायरेक्टली पुट करें तो भी वो उसकी डिफरेंशिएशन है, इतना आपको पता लगा था। dx इक्वल टू dy, दिस इज dy अपॉन रूट y, जो पहले भी कर चुके हैं, 2 रूट y प्लस c एंड 2 रूट y मीन प्लस c। अब आप कह रहे हैं जी 17 के साथ प्रॉब्लम है, तो मैं आपको राय दूं, लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक करना हर वक्त की कंपल्शन नहीं है। इधर अगर आप ऐसा भी शेयर करें, ऐसे भी तो शेयर कर सकते हैं आप, राइट। तो डिनोमिनेटर की डिफरेंशिएशन कितनी है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 की 2x। तो फर्स्ट आ गया आंसर, i इज इक्वल टू 1/2, यस, और 2 टाइम्स ये आपका फार्मूला हो गया अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का। अब आपके पास आंसर आ जाएगा, तब भी, हाँ तब भी यही आएगा। क्वेश्चन नंबर 17,
लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक है तो है ये, लेकिन अगर आप इसे और सिंप्लीफाइड फॉर्म में लेके जाएं तो आप ये देखेंगे कि अगर आप x के साथ डिनोमिनेटर शेयर करें तो कोई बताएगा कि डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन क्या रहेगी? वैसे बाय द वे 2x रहेगी। तो आपको लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक का लैम्डा म्यू में जाने की जरूरत है नहीं, आप यहीं से ही अपनी डिफरेंशिएशन को मैनेज कर लीजिए और आपके पास वो डिफरेंशिएशन आ गई। हाफ I1 क्लियर हो गया होगा, एक्स स्क्र माइनस 1 को पुट कर लिए, -2 I2, ये फार्मूला कौन सा है ये आप चेक करके बताएंगे। I1 2x अंडर रूट एक्स स्क्र माइनस 1 सेम, कितनी इंटीग्रेशन रहती है इसकी? अब तो याद होगी। हाँ हाँ, गलत गलत गलत, 2√y। हाँ जी बिल्कुल, आप इसे सीधा ही 2√y प्लस C1 डालिए, और जब बात आती है I2 की तो फार्मूला आप बताएंगे, विच फार्मूला यू आर गोइंग टू यूज, एक्स स्क्र माइनस 1 माइनस माइनस माइनस, अच्छा इट इज प्लस, ओके। फार्मूला विच वन? फोर्थ। So apply here, I is equal to half I1 and this will become 2 root, substitute, plus 2 times I2 और ब्रैकेट में C1 प्लस C2 इक्वल टू C। चेक करवा दीजिए कि आंसर यही है, और तो आपने सिंपल वैल्यू ही रखनी है। यस, करें नेक्स्ट। द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 18, अगेन लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक है। इसमें अगर आप डिफरेंशिएशन स्ट्रेट फॉरवर्ड लिख सकते हैं तो आप बता दीजिए, वैसे इसकी डिफरेंशिएशन कितनी आएगी? कर सकते हैं तो वेल एंड गुड, नहीं तो मेथड वही है आपके पास, न्यूमरेटर इज इक्वल टू लैम्डा डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर 3x² plus 2x plus 1 plus mu. So 5x minus 2 lambda, it is 6x plus 2 plus mu. निकालिए लैम्डा और म्यू की वैल्यू। कोएफिशिएंट ऑफ x इक्वेट किए होंगे, इक्वेटिंग कांस्टेंट, after calculation what is the value of lambda? -11 upon mu. Okay, now replace the numerator with this value lambda -11 upon 3 and your denominator. So I is equal to 5 upon 6. Numerator is a differentiation, denominator function, sharing with 11 upon 3. I is equal to 5 upon 6 times I1 minus 11 upon 3 I2. So your I1, अब जो मैंने आपको सजेस्ट किया था वो आप स्ट्रेट फॉरवर्ड भी यहाँ पे यूज कर सकते हैं। एग्जामिनर को सिंपल आपने ये लिख के देना है that this is a type in which
numerator is a differentiation and denominator is a function. So therefore, you directly writing it down as a log of function plus c. So according to that rule, I1 is log of now the next part is I2, in which you have to do completing whole square. Completing whole square में क्या कॉमन लेंगे जी? कोफिशिएंट ऑफ एक्स इज यूनिटी, एड एंड सब्ट्रैक्ट क्या रहेगा? एक्स के कोफिशिएंट का हाफ, जो कि आपके पास 1/3 हो जाएगा, हिज स्क्वायर ऐड और उसका स्क्वायर सब्ट्रैक्ट. This will become a perfect square. It is a perfect square of सर ये सॉल्व कितना आता है? After taking LCM, टू अपॉन 9 रहेगा बाय द वे. -1/3 plus, and which formula you are going to use? One upon a tan inverse of x upon a plus c2. 1/√2 tan inverse 3x plus 1/3 upon √2 c2 is 1/√2 tan inverse 3x plus 1/√2 plus c2. So आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन फर्स्ट में फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड. पुट वैल्यू ऑफ सेकंड एंड थर्ड इन इक्वेशन फर्स्ट. In equation first, just substitute the value and you will get the answer. Question number 19. अगेन लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक है. क्वाड्रेटिक अगर आपको नहीं दिखाई दे रहा तो मल्टीप्लाई करिए पहले. टाइप पता होगी तो यूज कर रहे हैं हम. We are using lambda and mu. Yes. कांस्टेंट इक्वेट करेंगे तो 7 minus 9 lambda plus mu 27 plus mu is equal to 34. करिए न्यूमरेटर को रिप्लेस इससे. यहां पर I is equal to in place of 6x plus 7 lambda plus 34 and your denominator. Split into two part, 3 times plus 34 times
Now write it down. 3 times I1 plus 34 times I2, your equation first. So we start with I1. Again अपने एग्जामिनर को मेंशन करना है. Divided with the function, the resultant is log of the function plus C. So by that rule, I1, sorry, it is not like that. ये without with root है. ये put होगा actually. X square minus 9x plus 20 equal to y. Differentiation 2x minus 9 dx equal to dy. So therefore I1 is equal to dy upon root y. इसकी इंटीग्रेशन बहुत बार लिख लीजिए. So I1 is 2 under root y. Now I2. Completing whole square. Coefficient of x square तो 1 नहीं है. Coefficient of x कितना है? उसका हाफ ऐड और उसका हाफ सब्ट्रैक्ट. ये परफेक्ट स्क्वायर है. कैलकुलेशन -1/4 फार्मूला. Which one? Fourth. Log of x plus under root आपको पहले भी बताया था ये इसी का ही परफेक्ट स्क्वायर होता है. इसलिए से हम सीधे ही वापस एक्चुअल वैल्यू को मेंशन कर देते हैं. थर्ड, put the value of a second and third in equation first. Is your answer. Question number 20. Linear upon quadratic. क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट टैग करना है बिकॉज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर शुड बी पॉजिटिव, जो यहां नहीं है. सो आप पहले ही कोफिशिएंट को कॉमन नेगेटिव रखना है या एज सच करनी है जी? ठीक. न्यूमरेटर इज इक्वल टू लैम्डा डिफरेंशिएशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक प्लस म्यू. सो x plus 2 is equal to lambda differentiation plus mu. To get the value of lambda and mu, equating the coefficient of a x, 1 minus 2 lambda, so lambda is equal to minus half, and equating the constant 2 4 lambda plus mu.
Substitute the value of a lambda. Mu is equal to 4. So yes, now you can replace the numerator x plus 2 with the value lambda plus mu and your denominator. Sharing the denominator, minus half as a common, plus 4 times so first of all I is equal to minus half times I1 plus 4 times I2. Okay, I1, again numerator is a differentiation of the denominator as a function. So therefore you can put 4x minus x square equal to y, dx equal to dy. So this is dy upon root y, whose integration is 2 root y, which is 2 root y mean 4x minus x square plus c1. So this is your equation second. And third, as such we says that coefficient of x square should be unity. So therefore you can take negative as a common, but we make sure कि negative root से बाहर common ना लिया हो आपने. Otherwise it will become a complex number with the iota. So the coefficient of x is 4 and his half is 2. His square will be added and subtracted. The first 3 terms is a perfect square of x minus 2 whole square. Introduce the negative sign. फार्मूला एक ही है इसका, साइन इनवर्स. The fifth one, I2, the integration sine inverse x upon a plus c2 is your third equation. So put the value of second and third in equation first and you will get the answer. Question number 21. आप करिए, उसके बाद डिस्कस करते हैं. Numerator is equal to lambda differentiation plus mu, coefficient of x 1 और यहाँ पे 2 lambda, lambda is equal to half, equating constant बच्चे ये है 2 और ये मल्टीप्लाई करके आएगा 2 lambda और ये आएगा mu और lambda की वैल्यू जब हम यहाँ रखेंगे तो कैंसल्ड, mu आएगा 1. न्यूमरेटर को इससे रिप्लेस करना है. I इज इक्वल टू लैम्डा 2x प्लस 2 और mu 1. अब आप इसे नेक्स्ट स्टेप में शेयर करेंगे.
So I is equal to half 2x plus 2. Yes, ये इसकी डिफरेंशिएशन है. Mu dx upon x square plus 2x plus 3. हाँ जी, I is equal to half I1 plus I2. I1 डिनोमिनेटर फंक्शन है, न्यूमरेटर उसकी डिफरेंशिएशन है, और अगर ऐसा है तो वी पुट द डिनोमिनेटर x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 इक्वल टू y. द डिफरेंशिएशन 2x प्लस 2 dx इक्वल टू dy. So therefore dy upon root y is equal to root y plus c1. Root y mean x square plus 2x plus 3 plus c1. जो सेकंड पार्ट जिसके बारे में आप ब्लंडर कर रहे हैं, पहले तो मुझे उसे I2 कंप्लीटिंग होल स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ x कितना है 2, उसका हाफ 1, वो स्क्वायर ऐड एंड सब्ट्रैक्ट, और खुद का कांस्टेंट है उसका 3. So therefore I2 is equal to dx upon, this is a perfect square of 3 minus 1 2. ये रूट 2 स्क्वायर है. कौन सा फार्मूला है जी? log of x plus अंडर रूट प्लस C2. एज यूजुअली ये जो वैल्यू रूट में है, दिस इज एक्चुअली अ सॉल्यूशन ऑफ दिस वैल्यू. सो वी डू नॉट वेस्ट अ टाइम और डायरेक्टली इसे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं. सो पुट द वैल्यू ऑफ सेकंड एंड थर्ड in equation first, and when you substitute it, जो आंसर मुझे सुनाने की कोशिश हो रही थी, दोनों हाथ जोड़ के उनको बता दूं कि ये आना था जोड़ के. क्वेश्चन नंबर 22. सो लैम्डा म्यू लगाना है या स्ट्रेट फॉरवर्ड डिफरेंशिएशन करनी है? लैम्डा म्यू. ओके जी. 2x माइनस 2 है, आप कंप्लीट कर सकते हो 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करके जी, अगर आप चाहें. नहीं कर सकते तो वो बिल्कुल क्लियर है आपको कि न्यूमरेटर इज इक्वल टू लैम्डा डिफरेंशिएशन ऑफ quadratic plus mu. The numerator is x plus 3. Differentiation is 2x minus 2 plus mu, equating the coefficient of x, which is 1 and 2 lambda. Again यहाँ पे lambda half ही आया है. And next equating the constant. Constant equate करने तो वो आएंगे 3 and minus 2 lambda plus mu. लैम्डा की वैल्यू हाफ रखेंगे तो म्यू यहाँ पे 4 आएगा. रिप्लेस करिए न्यूमरेटर को विद दिस वैल्यू. सो आई इज इक्वल टू लैम्डा 2x माइनस 2 प्लस 4, डिनोमिनेटर की शेयरिंग. आई इज इक्वल टू हाफ टाइम्स 2x माइनस 2 अपॉन x स्क्वायर minus 2x plus 5, and next you share with constant, which is x square minus 2x plus 5. So these are the two values, half I1 plus 4 times I2, whereas I1 क्योंकि डिनोमिनेटर में रूट नहीं है तो एग्जामिनर को इसे आप मेंशन कर सकते हो बाय स्ट्रेट फॉरवर्ड द टाइप which says if the numerator is a differentiation, denominator is a function, your resultant is log of the function. So by that rule, I1 is log of function, which is x square minus 2x plus 5
प्लस C1, I2 कंप्लीटिंग होल स्क्वायर जाएगा उस पे, कोफिशिएंट ऑफ x -2 है, उसका हाफ 1, 1 स्क्वायर ऐड, 1 स्क्वायर सब्ट्रैक्ट. First three terms is a perfect square of x minus 1 whole square. सर वो -5 हाँ जी, कितना आया फिर ये? कांस्टेंट कितना आया? कांस्टेंट √6 होल स्क्वायर एंड द फार्मूला. So I2 is equal to 1 upon 2a mean constant, log of x minus a, x plus a plus C2. So substitute the value, put the value of second and third in equation first. Now the last question from your exercise 7.4. ट्राई आप करेंगे पहले. लास्ट है इसलिए आप इसे स्ट्रेट फॉरवर्ड मैच करिए. लैम्डा 5/2 and mu is 7 -7. शेयरिंग द डिनोमिनेटर I1 को अलग से पुट करेंगे तो आपके पास वही 2√y वाली फॉर्मेशन रहेगी अलग से शेयर करने पे, जिसकी इंटीग्रेशन फाइनली 2√y इज दिस वन. द सेकेंड वन इज अ कंप्लीटिंग होल स्क्वायर जो 7 के साथ रहेगी, और आफ्टर कंप्लीटिंग होल स्क्वायर दिस विल बिकम बाय यूजिंग द फार्मूला, ये आएगी जी I2. और फाइनली दोनों को कंबाइन करके दिस वन इज योर आंसर. दो MCQ हैं जो आप खुद ब खुद से ट्राई करेंगे. क्वेश्चन नंबर 24 एंड 25. यहाँ 7.4 ओवर होती है.